अनमोल वचन। दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण करते आ रहे हो किस प्रकार गुरु नानक साहब महाराज दूसरी उदासी समय जगत जलंदे नूं तारदे पए हन। गुरु नानक साहब महाराज ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ। ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਰਗਾਹ ਪਵੇ ਕਬੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਕਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100 ਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, दूसरी वार रहरा साहब जी की पवित्र गुरबाणी में आउंदा है,
तीसरी वार राग आसा विच आउंदा ते उहदे विच सतगुरु ने बार बार जिक्र किया ते क्या हे रब जी तैनू ऐ भी गा रहा, तैनू ऐ भी गा रहा, पवन भी गा रही, अग्नि भी गा रही, देवी देवते इत्यादिक किहड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ी तैनू नहीं गा रही। ते सतगुरु ने तो इत्थों तक कह दिता महाराज किन्ने गाउंदे है। सतगुरु कहंदे से मैं चेतन आवन मेरे भी चेते विच नहीं आउंदे, पता नहीं किन्ने को गा रहे। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कहंदे फकीर तेरी पहली गल तो ठीक है कि रब एक है, पर दूसरी गल कि केवल हज़रत मुहम्मद साहब, महाराज कहंदे नहीं, रब दे दर ते हज़रत मुहम्मद साहब जैसे अनेकां लोग रब दी सिफत गा रहे हैं। उन्हें जेड़ा मुबारक बोल के असी साडे इतिहास दे बचन वो कहंदा सी पहला नाउं खुदाए का, दूजा नबी रसूल, नानक कलमा जे पढ़े दरगाह पवे कबूल। गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ा जवाब दिता, सतगुरु कहंदे ने पहला नाउं खुदाए का, दर दरवान रसूल। सतगुरु कहंदे ने ओदे दर दे उपर अनेकां हज़रत मुहम्मद साहब खड़े है। ते ओ जिहड़ा फकीर कहंदा नानक कलमा जे पढ़े, जे तू कलमा पढ़े तां रब मिलदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे कलमा नहीं, सतगुरु कहंदे सिखा नीयत रास कर तां दरगाह पवे कबूल। अपनी नीयत साफ कर, अंदर दी खोट नूं दूर कर, अंदर दे हंकार नूं दूर कर, मन अंदर पवित्रता लैके आ। जे तू इवें लैके आवेंगा तां रब दे घर विच प्रवान होएगा, नहीं तो इवें केवल ते केवल बाहरी तौर दे उपर शरा दे अधीन रह के कीते कम्मां दे नाल रब दे घर विच प्रवानगी नहीं मिल सकती। सतगुरु कहन लगे कहंदे रब एक है, इहदे च कोई शक नहीं, पर उस रब दे दर दे उपर रब नूं गाउण वाले किन्ने है उन्हां दा कोई अंत नहीं। ते गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कहंदे इस करके कि हे फकीर अपने नीयत साफ करन दा यतन कर तां रब दी प्राप्ति होवेगी। सतगुरु ने जदों ये पावन पवित्र उपदेश दृढ़ करवाया, वो फकीर गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां दे उपर डिग पिया, कहन लग्या सतगुरु सच दा उपदेश मैनू भी बख्शिश करके दिओ जे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने उहदे हंकार नूं दूर करके उन्होंने सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। गुरु नानक साहब महाराज जी की इसे दूसरी उदासी समय एक विचार चर्चा हुई। वो कश्मीर का रहने वाला सब तो वड्डा पंडित विद्वान है और उहदा नाम ब्रह्मदास है। एक विचार चर्चा गुरु नानक साहब महाराज जी की जदों सतगुरु पहली उदासी समय गए सी उदों भी हुई सी, उहदा नाम चतुरदास सी। हुण जदों दूसरी उदासी समय गए तो उदों विचार चर्चा हुई, इहदा नाम ब्रह्मदास है। गुरु नानक साहब महाराज जी के सन्मुख ब्रह्मदास आया। ब्रह्मदास जेड़ा अपने नाल ऊठां दे गड्डे भर के लैके तुरया फिरदा है। ऊठां दे गड्डे भर के उन्हें इन्ने को ग्रंथ लदे हुए है ते शर्त की रखदा है, कहंदा मेरे नाल विचार चर्चा करो। जदों कोई विचार चर्चा करदा है तो जे कोई जित जावे तो फिर शर्त यह है कि मैं अपने वाले सारे ग्रंथ तैनू दे देंगा, पर जे कोई हार जावे तो उहदे वाले सारे ग्रंथ अपने गड्डियां दे उपर लद लैंदा सी। इन्ने गड्डे लद के तुरया फिरदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल विचार चर्चा हुई, यही रखण दा यतन करदा है कि मैं नानक जी नूं जितना है, उस नानक नूं जितना है जिहड़े गुरु नानक साहब महाराज दे अगे सारी लुकाई चुकदी पई है, जिहदे अगे वड्डे वड्डे चोर डाकू ठग पंडित विद्वान सारे झुक गए। उस गुरु नानक साहब महाराज नूं जितन दा यतन करन लग्या है, विचार चर्चा करन वास्ते आया। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कहंदे ब्रह्मदास बड़े सारे ग्रंथ लद के तुरया फिरदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने जिहड़ा पावन पवित्र उपदेश दिता, वो राग आसा दे विच एक श्लोक आसा की वार विच आपां पढ़दे हैं। सतगुरु ने उस ब्रह्मदास दे सामने एक श्लोक रखिया ते उहदी जिंदगी बदल के रख दित्ती। जिहड़ा बहुत सारे ग्रंथां दा ज्ञाता सी, सतगुरु दा एक श्लोक सुनिया, उहदे अंदर इदां उतरिया कि वो गुरु नानक साहब महाराज के चरणों ते डिग पिया। बाबे ने की कहा, महाराज कहंदे ने ये मनुख पता नहीं पढ़ पढ़ के किन्ने गड्डे लदी फिरदा है। सतगुरु कहंदे पता नहीं किन्ने जन्म हो गए पढ़दियां, सारी जिंदगी बतीत कर देन लग्या है, पर जे पढ़न तो बाद भी इनू सच की समझ नहीं आई तो पढ़न का लाभ कोई नहीं।
गुरु नानक साहब महाराज ने मुबारक बोल के पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। सतगुरु कहते किन्ना क पढ़ीए? महाराज कहते पढ़िए जेतै बरस बरस, पढ़िए जेतै मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेतै सास। पर सच ए ब्रह्मदास नानक लेखै एक गल होर होमै चखना चाक। सतगुरु कहते जे लेखे विच पैनी है गल, वो केवल परमात्मा का नाम लेखे च पैना है। अब बाकी सारा कुछ जो कुछ तू करदा पिया होमे दे करके करदा पिया, केवल हंकार करके कर रहा है। हंकार करके लोगों को जितन के दावे करदा है, हंकार करके लोगों को अपने अगे झुकाउण का यतन करदा है। जे लेखे च पैना तो वह केवल परमात्मा का नाम पैना है, लेखे दे विच केवल रब दे नाम तो बिना होर कुछ नहीं पैना। उस ब्रह्मदास नूं समझ आ गई। वो ब्रह्मदास गुरु नानक साहब महाराज के चरणों के उपर डिग्या। ये सच है कि उही ब्रह्मदास जिहदी कुल दे विचों अगे जाके कृपा राम दत्त जदों इस्लाम वाले औरंगजेब ने सारिਆਂ ਨੂੰ मुसलमान बनाउणा शुरू किया सी, ते उदों फिर कृपा राम दत्त की गवाही विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के कोल आए सी। ये उही ब्रह्मदास की कुल दे लोग सन। कृपा राम दत्त ब्रह्मदास की कुल दे विचों सी जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शरण विच आया। पर गुरु नानक साहब महाराज समझा रहे ने, कहते पढ़ना जिहड़ा है वो केवल ते केवल लेखे विच एक गल पैंदी है, पर सतगुर की पवित्र गुरबाणी ने एक गल कही। महाराज कहते ने देख पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ हंकारा। ये वो बंदा पढ़िया होया भी मूर्ख है जिहदे अंदर लभ है, लालच है, जिहदे अंदर अजे भी मोह है, जिहड़ा दुनिया नूं लुटण दे यतन करदा है। पढ़िया तो हैगा है, पर पढ़े दा लाभ की है? गुरु नानक साहब महाराज जी ने सतगुरु साहब ने संसार के सामने गल रखी। सच ये है भाई गुरदास साहब जी के हवाले दे नाल सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी जसवंत सिंह जी ने एक घटना लिखी है। वो कहते उज्जैन नगरी जिहड़ी है ना, ये शुरू तो लैके विद्वता का बड़ा वड्डा गढ़ रहा है। इत्थे राजे भोज ने राज किया है। इत्थे इसे उज्जैन नगरी दे विच राजे बिक्रम ने राज किया, जिहदे तो बिक्रमी संमत शुरू हुई। और उस नगरी दे विच एक विद्वान पंडित आया। विद्वान पंडित की शर्त उही है जिहड़ी शर्त गुरु नानक साहब महाराज जी के समय ब्रह्मदास दी है कि जे मैं हार गया तो अपने वाले ग्रंथ सारे दे देंगा, जे मैं जित गया तो सारे ग्रंथ जिहड़े मेरे होए। उत्थों दे जिहड़े पुजारी सन, पंडित सन, उन्हां नूं हुण डर पै गया कि इस पंडित दे सामने कोई जित नहीं सकता, इस विद्वान नूं कोई जित नहीं सकता, की करिए? जे चर्चा नहीं करते तां भी साडी बेइज्जती होएगी, जे चर्चा करके हार गए तां भी बेइज्जती होएगी, की करिए? उन्हां सारिਆਂ ने बैठ के एक विਉਂਤ घड़ी है। किहड़ी विਉਂਤ? वो कहन लगे, कहंदे कि क्यों ना उस नगरी दे विच रहन वाला जिहड़ा एक तेली है, जिन्हों गंगा तेली कहा गया, एक अख तो काना है, एकू अख उहदी काम करदी है, कोलू चला चला के उहदे हत्थां पैरां दे उपर मैल लगी हुई है, पाटे होए लिबड़े होए उहदे कपड़े है, पैरां दे विच उहने कदे जुत्ती नहीं पाई। उन्हें विचार की, कहन लगे क्यों ना गंगे तेली नूं विद्वान बना के उस पंडित के सामने चर्चा करने वास्ते भेज दईए। इदां ही होया। उन्होंने विद्वान पंडित नाल चर्चा करने की बजाय गंगे तेली नूं सोहणे कपड़े पवा के, विद्वानां वाले कपड़े पवा के, हुण कदे उन्हें पैरां 'च जुत्ती नहीं सी पाई, उन्होंने नवीं जुत्ती लैके दित्ती कि जुत्ती भी पैरां विच पा। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੇ ਤੇਲੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗੜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
अपने वालों उहदा भाव है कि रब जिहड़ा एक है, एक उंगल खड़ी की भाव रब एक है। गंगे तेली ने समझिया कि शायद ये कहंदा भी तेरी एक अख है ते जिहड़ी तेरी एक अख हैगी है मैं उंगल मार के कढ़ देनी है। उन्हें गंगे तेली ने अपनी समझ के मुताबिक वो 2 उंगलां खड़ियां कीतियां भी जे तू मेरी एक अख कढ़ी तो मैं तेरियां जिहड़ियां 2 है दोनों अखां कढ़ दियांगा। गंगे तेली ने जदों 2 उंगलां खड़ियां कीतियां, विद्वान पंडित ने सोचा कि शायद ये कहंदा भी मैं सवाल किया रब एक है, इन्हें 2 उंगलां खड़ियां करके क्या शायद भी रब के 2 स्वरूप है, एक निर्गुण है एक सरगुण है। निर्गुण है आप, सरगुण भी वही। कह लगे जवाब ठीक है, पर गंगे तेली अपनी समझी नाल दे रहा है तो वह विद्वान पंडित अपनी समझ के मुताबिक वो सोचता पिया है। फिर उन्हें 5 उंगलां खड़ियां कीतियां विद्वान पंडित ने, जिहदा भाव है यह सारा पसारा 5 तत्तां तो पैदा होया है। गंगे तेली की अपनी समझ है, उन्हें सोचा कहता मैं तेरे मूँह ते चपेड़ मारनी है, थप्पड़ मारना है। उन्हें अगों उन्होंने 5 उंगलों बंद करके मुक्की बनाई, कह लग्या कहता जे तू 5 मेरे थप्पड़ मारेगा तो मैं तेरे मुक्की बना के मारांगा। विद्वान पंडित ने सोचा कि मैं क्या भी 5 तत्त है, कहता भी 5 तत्तां जो इकट्ठियां कर दिए तो सृष्टि की रचना होंदी है, जब 5 वकार जिहड़े उन्होंने अपनी मुट्ठी दे विच करना चाहिए। कहता ये जवाब तो बिल्कुल ठीक है, पर उहदी समझ अपनी है, उहदी समझ अपनी है। इसे तरह के नाल जदों ये चर्चा हुई, कह लगे इशारियां दे नाल दिते जवाब बिल्कुल ठीक है, हुण क्यों ना आपां किसी ग्रंथ के आधार पर चर्चा करिए। विद्वान पंडित कह लगे, कहंदा गंगे तेली नूं कहंदा दस किहड़े ग्रंथ के आधार पर चर्चा करनी है, किहड़े ग्रंथ के आधार पर करनी है। हुण उन्हें कदे ग्रंथ पढ़िया ही नहीं, उन्होंने तो केवल कोलू चलाउणा आउंदा है, उन्होंने की पता ग्रंथ की हुंदे है। पर उन्होंने समझाया गया सी चुप नहीं करना, बोली जाना है, तो उन्हें उस वेले क्या कह लगे, कहता कंटक चूर्ण पुराण ग्रंथ। कंटक का भाव कंडियां नूं चूर कर देने वाला, भाव जिहड़ी जुत्ती उन्हें अपनी कश दे विच लकाई सी उहदा नाम घड़ता, कहता कंटक चूर्ण पुराण ग्रंथ। विद्वान पंडित कह लगे, कहता वो किहड़ा ग्रंथ हुंदा है, मैनू दई 2 मिनट वास्ते मैं पढ़ के हुणे तेरे नाल चर्चा करदा है। ਜਿਹੜੇ लोगों ने गंगे तेली नूं तैयार किया सी उन्होंने ताड़ियां मारतियां, कह लगे कहते विद्वान हार गया, इनू ग्रंथ का ही नहीं पता। जदों उस विद्वान नूं पता लगा, कह लग्या मेरे नाल धोखा होया, छल होया, कपट किया गया है, ये असल में कोई विद्वान नहीं, ये तो तेल कढ़न वाला गंगा तेली है। तो वह अपने आप में ही शर्मिंदा होया, हार गया। एक समझदार बंदा बेसमझे दे कोलों हार गया, एक ज्ञान वाला मनुख जिहड़ा अज्ञानी दे कोलों हार गया। की कारण है? सच है दोनों मूर्ख है। क्यों? एक नूं अपने ग्रंथ दा अपनी विद्वता दा हंकार चढ़िया होया सी ते एक नूं केवल अज्ञानता दे वस लिया के ते उहदे सामने बिठाया होया सी। भाई गुरदास साहब जी ने जिक्र करदिआं कहा, कहंदे गोष्ट गंगे तेलीए पंडित नाल होवे जग देखै। दोवां दी गोष्ट हुंदी है, जग संसार वेखदा है। कहंदे खड़ी करे एक उंगली गंगा दोए वखालै रेखै। वो एक उंगल खड़ी करदा, गंगे ने 2 कीतियां। फिर उचाए 5 उंगलां गग्गा मुठ हलाए अलेखै। पैरी पै उठ चलिया पंडित हार भुलावे भेखै। निर्गुण सरगुण अंग दोए परमेश्वर 5 मिलन सरेखै। अखी दोवें भनसा मुक्की लाए हलाए नमेखै। मूर्ख पंडित सुरत वसेखै। वो पंडित विद्वान भी मूर्ख बन गया, एक मूर्ख के सामने वो भी मूर्ख बन गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नूं पुछया, सतगुरु कहंदे विद्या विचारी तां पारे उपकारी। ये विद्या तां है जे तू किसी ते पारे उपकार करदा, किसी दा भला करदा है। पर जे इस विद्या नूं पढ़ के हंकारी हो जावें, इस विद्या नूं पढ़ के तेरे मन अंदर लालच आ जाए तो सतगुरु कहंदे फिर पढ़िया मूर्ख आखीए। जिस लभ लोभ हंकारा वो पढ़िया होया भी मूर्ख है। जिहदे अंदर लभ है, लालच है, लोभ है, तो गुरुदेव कहंदे नाउं पढ़ीए नाउं बुझीए गुरमति विचारा। परमात्मा जी के नाम नूं पढ़, उहदी विचार कर, तेरा जीवन जिहड़ा वो बदल जाएगा। जे पढ़ के हंकारे भी बन के बैठा रहा तो किसी काम नहीं आने वाला। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का घर जिहड़ा केवल विवेक बुद्ध की गल करदा है, हंकारियां की गल नहीं। तो गुरु नानक साहब महाराज ने
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ